अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग मेरे भाई? हाउ यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे. Lots of people are having good time. Lots of people are having good time and they are living a good life. Well, anyway, let's talk about some charts here. Let's see, because market has changed a little bit, and the best thing has changed. We have a new month. A month of August is finished. Once month of August finished, historically I have shown you that September usually are the red months. That doesn't mean history has to repeat, but we are seeing another September, and every time September's come, we see a drop. Okay, a drop or a correction, and whatever we call. 3 out of 4 times, 3 out of 3 times we had drop last 3 freaking years. So what do we expect? We expect another drop. So the thing that I'm going to tell you here is that there's nothing wrong if the price drops or market drops. The important thing is that जो हमने यहाँ समझने की कोशिश करनी है, what if it drops, where it is going to land. Okay, let's put the volume in. This volume, perfect. Okay, let's put some advanced stuff. This is the fixed range. I'm going to show you what fixed range is all about. So this is the point of control of this whole rally. From that drop to that drop, this is the point of control. And the point of control is heading towards where? Sorry, it is heading towards the level of this level, $38,000. This is the point of control of this drop to this drop. Point of control is that level. ये वो level होता है जिस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है, और ये सॉर्ट ऑफ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट समझा जा सकता है, क्योंकि द वॉल्यूम ट्रेडेड है. सो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि प्राइस इसकी तरफ आती भी है मैग्नेट की तरह, और प्राइस इसको होल्ड भी करती है. सो इस एरिया के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है. अगर ये ड्रॉप होता है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, कुछ चीज़ें आपके सामने express करूँगा. मे बी इट हेल्प्स यू इन टू assess the market. मार्केट के अंदर अब ये जो कैंडल्स दो बनी हैं, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉल्यूम, ब्यूटीफुल 2 कैंडल्स moving to the upside, nice candles, but they are pretty upright. So upright candles have upright effect. Okay, so it has, these are the 2 upright candles, pretty bullish. But I have showed you one thing before anything happened. I always tell you, these monthly open, monthly close, highs and the closes, they mean a lot. Okay, they mean a lot. So फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें तो प्राइस, अगर हम देखोर से देखें तो प्राइस जो है, जो मार्केट है, वो मंथली रेजिस्टेंस से एटलीस्ट फ्यू बक्स ऊपर क्लोज हुई है, विच इज़ अ गुड साइन. इट शोज वी आर इन मूड, वी वांट टू ब्रेक, वी वांट टू गो इनटू दैट रेंज. व्हाट इज दैट रेंज? दिस रेंज इज अबाउट टू अनलीश. पहले हमने इस रेंज के अंदर ट्रैवल किया है. Now we want to get this range. Now the question which I'm trying to tell you, and the thing which I'm trying to tell you, I'm going to teach you, is very important. देखें, अब प्राइस ने काफ़ी अच्छा लेवल अचीव कर लिया. दिस इज़ ऑलमोस्ट, हम 70% मूव कर चुके हैं फ्रॉम द लोज, और ऑलमोस्ट 77%. दिस इज़ बिग मूव. यानी BTC जैसा अगर हम इसको कॉइन मार्केट कैप पे देखें, कॉइन मार्केट कैप, BTC जैसा तकरीबन $895 बिलियन वाला कॉइन, 895 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के करीब है. एंड 895 बिलियन वाला कॉइन हैज़ 2 months ग्रीन फ्रॉम द लोज. इनफैक्ट ये मंथ भी ग्रीन ही समझा जा सकता है, from the lows, and it is still pumping. So what we have to understand is that either we are going to see some correction
or we are going to see some retest of the support. अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है और मैं आपको उसके लिए अब मैं आपके लिए मैंने लेवल्स मार्क कर दी हैं. लेट्स गो टू द 3D चार्ट. दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहला लेवल वो ये होता है कि आप देखिए कितना मंथली लेवल को इसने सपोर्ट दिया. नाउ इट इज होल्डिंग मंथली लेवल्स, इट इज होल्डिंग monthly support, monthly resistance, and we are above monthly resistance and we can challenge this area. It looks pretty simple and I think we are going to challenge this area because ये जो तीन candles बनी है they are bearish but they've not been able to close below this beautiful level of support which is a monthly resistance. Monthly resistance को claim किया हुआ है. So this level is very important. So जो मेरा जर्नल कॉन्सेप्ट है या मेरा जो जर्नल ओपिनियन है कि मार्केट जो है, अब मार्केट ने बहुत लोगों को टाइम दे दिया यहाँ से ड्रॉप होने का. सो मे बी अगर यहाँ से ड्रॉप होती है तो आई डोंट थिंक सो दिस ड्रॉप हैज़ दैट इफेक्ट इन माई ओपिनियन जिससे हम मतलब अगर ये ड्रॉप होता है एंड हाउ मच ड्रॉप इट वुड बी, इट इज़ 20%. आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े मूव का 20% ड्रॉप होगा. ठीक है, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ ड्रॉप, लाइक करेक्टिव, राइट, एटलीस्ट 30%. क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना उसकी एक आदत होती है. मार्केट की ये आदत है कि मार्केट इस तरह ऊपर जाती है इस तरह रेव में और उसके बाद एक बूम करके ड्रॉप करती है, उसके बाद फिर कंसोलिडेट और फिर ऊपर जाती है. हम किताबों में तो पढ़ते हैं या आपको लोग बताते तो हैं कि मार्केट जो है ना भाई वो तो ऐसे जाती है, ऐसे तो जाती है, लेकिन ये काम भी करती है, ये काम करती रहती है. सही है. तो ये चीज़ें जो मार्केट के अंदर हैं वो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें कि मार्केट में अब वो हो सकती है. अब मुझे जो मेरा ओपिनियन है, जो यहाँ मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है और जो RSI भी आपका कोई न्यूट्रल जोन में है, अबव न्यूट्रल है. सो एक चीज़ जो है इस पूरे मूव में, दिस एरिया एंड दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस candle is the candle which I am interested in on 3D chart. This is a very important candle. If I am going to short this market, I am going to wait for this market to come here at $55,000 or $56,000 probably. If it comes to that level on 3D chart, and then I expect something like this. This may trigger a 30% drop. Yeah. So this is what I think. अगर यहाँ से ड्रॉप करता है तो this drop is not going to affect anybody. I believe this is not a drop to watch. I think the drop, if that drop has to come, it has to come here. It can come, but I think there may be a probability that we may come to this candle. Why to this candle? To the low of this candle. Let's mark this up again. This low of this candle. Okay. Why this candle? Because इस पूरे मूव को स्टार्ट करने में this thing has some role to play, or we had this inefficiency or a fair value gap from that candle to that candle and we are about to fill it. In my opinion, प्राइस इतना करीब आ के इसको फिल करने के लिए आ सकती है और हम थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकते हैं. तो 56 and 57 is pretty reasonable. With that respect, और ये जो रैली होगी मे बी हाई वॉल्यूम रैली ना हो. क्यों? ये रैली ऐसी रैली हो सकती है, this kind of a rally. We can have big candles but we cannot have volume. It is all about, maybe this is what I think, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन व्हाट आई थिंक मैक्सिमम पेन. लेकिन अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका? इसको ट्रेड करने का तरीका है अब लोग क्लोज अबव दिस वन, एनीथिंग गोज अबव दिस वन, दिस टाइम अराउंड इट इज गोइंग टू गो अप. ओके, आप यहाँ पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं लेकिन अब स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें. मैंने लॉन्ग लिया हुआ है. आई डोंट नो कि आप मेरा ट्विटर पेज फॉलो करते हैं कि नहीं. ट्विटर में मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ एंड मेरा जो ट्विटर पेज है मैं उसमें दिखाता हूँ. मैं आई टुक अ लॉन्ग वेरी टाइट स्टॉप के साथ. मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लिया है BTC के ऊपर
या दैट्स माई लॉन्ग, ये मैंने लॉन्ग शेयर किया है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत करीब है, $46,000 पे है. सो आई एम रिस्किंग ओनली 1%. व्हाट आई मीन बाय 1%, लेकिन मेरे ट्विटर पेज को जरूर ज्वाइन करें बिकॉज आई पुट लॉट ऑफ सेटअप्स हियर एंड आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट हियर. व्हाट इज 1%? इज दैट अगर मैं लेट मी पुट माई चार्ज इन प्लेस, अगर मैं 20,000 या $100,000 की पोजीशन लेता हूँ, पीपल प्ले इन डिफरेंट स्टाइल, आई प्ले इन डिफरेंट स्टाइल. So I'm going to risk 1% here. $200,000 position multiplied by 1% risk. This is the amount of money I'm going to lose. Okay? This is the amount of money I'm going to lose. And how much money I'm going to make? I'm going to make almost, if if I play from here to there and risk this one, yes, yeah, I'm going to make 7%. So 7 hour, that is almost 7 of this. This is going to give me $14,000. Only risking $2,000. यानी ये मुनाफे का सौदा है ना. मानी आप कोई ऐसी ट्रेड ले रहे हैं जिसमें आप 17, और मेरा टेक्निक ये है कि मैं ऑन द वे आप प्रॉफिट लेता रहता हूँ. मेरी फिक्स रेंज नहीं होती है. आई एम अ ट्रेडर, आई नो हाउ टू मैनेज माई रिस्क. ओके, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, अब ये बात तो मैंने समझा दी. मैं जो कुछ चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, ये लेवल्स देखें कितने क्लियर लेवल्स हैं. हम हर लेवल्स पे प्रॉफिट लेंगे और हर लेवल्स पे बाहर आएंगे. इस लेवल से ऊपर इट्स अ क्लीन ब्लू स्काई, प्राइस कैन गो अप. एक और बात कि मैं अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरी वीडियोस इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती जैसे बाकी यूट्यूबर्स होते हैं. तो डू यू थिंक कि आई शुड पुट माई फेस एज वेल, मतलब मैं अपना जो फेस है वो भी दिखाया करूँ वाइल टॉकिंग टू यू गाइज. इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा. ओके, और मैं इंग्लिश और उर्दू का मिक्स इस्तेमाल करता हूँ, पर मेरी कोशिश होती है मैं इंग्लिश में बात करूँ बिकॉज कम्युनिटी बड़ी मैं करना चाहता हूँ. उसके लिए आई नीड बिग पीपल, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो. ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट तब बनेगा जब आप उसको इंग्लिश में भी बात करेंगे. तो उसमें बुरे ना बनाइएगा. अगर आपको उर्दू में किसी चीज़ का एनालिसिस चाहिए तो मैं शेयर करता रहता हूँ उर्दू में, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को लाऊँ, तो उसमें हम लोग सब हों. ओके, तो एनीवे दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, जिस लेवल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, एंड दिस इज $41,000 322. दिस इज वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टॉप. यहाँ से सब कुछ होगा. और आई, इफ यू रिमेंबर दिस ट्रेंड लाइन आई ड्रू, आई एम स्टिल owning this trend line. I still think we have an probability that we can revisit it. If we don't, it's not. Second thing which I'm going to tell you, if you notice today what we are seeing, look at this candle. Whoa, beautiful candle, man. Okay, this is a 10-minute chart. Okay, what I'm trying to tell you is today I am telling you about ETH USD. आप लेट्स गो टू द डेली चार्ट. आप ETH का देख रहे हैं. मैंने ETH के ऊपर लॉन्ग हूँ मैं काफ़ी दिनों से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ETH भी हमें इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आ रहा है. एंड आई थिंक ETH इज़ प्रीटी मच नियर, ऑलमोस्ट यस, इस रेंज में आ सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है. डोंट टेक मी लाइट. ETH can break it. ETH can come easily in the middle of it, like this one. Yeah, 38 is possible. I still think a blow off. Anyway, जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, let's go to daily of this one. And on the BTC, ये BTC का चार्ट है और वो ETH का चार्ट है. This is ETH, this is BTC, and this is ETH. एक बात याद रखिएगा, ETH के अंदर एक खासियत यह है कि जब रैली क्लोज टू एंड होती है या लास्ट मूव होता है मार्केट का, तो ETH इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू हो जाता है. इंडिपेंडेंटली का मतलब यह है कि अगर आप गौर करें, टुडे BTC इज नॉट रैलिंग बट ETH इज रैलिंग. ETH अपने आप को अप फ्रंट मूव कर रहा है. ETH इज मूविंग टू द अपसाइड 12%, एंड BTC इज स्टिक हियर. व्हेन डिड दैट हैपन? ये कब हुआ था पहले लास्ट टाइम? I show you. I think that was the time. Yes, that was the time. अगर हम इसको मार्क करें चार्ट के ऊपर, और अगर हम इसको थोड़ा सा मार्क करें,
यस, थोड़ा सा ऑलमोस्ट इस टाइम फ्रेम के ऊपर लाइक 22 अप्रैल 22 अप्रैल ना, अगर आप गौर करें और आप इसको भी गौर करें, 22 अप्रैल से ईथ ने रैली की। नाउ वॉच इट, बीटीसी ने 3 दिन ड्रॉप किया, ईथ ने 2 दिन ड्रॉप करने के बाद पहले रैली ले ली। एंड व्हाट हैपन कि बीटीसी इस रैली के बाद मूव किया ऑलमोस्ट 24%। दिस इज अ 24% मूव, 47 से 58, ये शॉर्ट फिलिंग हुई। और ईथ ने कितना मूव किया? ईथ मूव 100%। कब से कब तक? अगर हम गौर करें तो अगर हम इस 24% वर्सेस 100%, अगर हम गौर करें तो दिस टॉप, देयर इज अ टॉप, फॉर एग्जांपल हम इस कैंडल को कर लेते हैं 10th मई तक। सो टाइम और डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 10th मई, वेयर इज 10th मई? यस, सो 10th मई तक BTC has traveled very few bucks comparatively to ETH. ETH के comparatively मैं बता रहा हूँ, BTC has traveled only 24% and ETH had traveled 100%. तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ जो समझाने वाली इसमें जो मैं बात जिस पे फोकस करने लगा हूँ, ये ऑल्ट सीजन को शो कर रहा है। ऑल्ट सीजन, अभी ऑल्ट्स पंप होंगे, यानी अभी आप किसी भी ऑल्ट में पैसे डाल लें, स्पेशली जो DeFi प्रोजेक्ट्स हैं, DeFi प्रोजेक्ट्स आप ढूंढ लें, दे विल पंप लाइक क्रेजी, जैसे वाईफाई, आवे, SNX, लिंक, जो DeFi प्रोजेक्ट्स हैं मेजर। इवन दो LTC नियो भी पंप होंगे जब BTC ड्रॉप हो रहा होगा, आई थिंक वो भी पंप होंगे। एनीवे, तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। तो इसका ये मतलब है कि व्हाट आई एम सीइंग हियर, ETH is pumping, just started pumping, and BTC is not yet pumped. इसका मतलब ये है कि maybe I'm wrong, maybe ETH might put a new something like here, like put a new high or something like this, even the $4,000, or even yes, like this, even though this. So मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ETH यहाँ से रैली करके 25-30% ऊपर जा रहा है और BTC यहाँ से रैली करके भी 15-20%, ये 17%, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक ETH के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हाई ब्रेक कर सकता है, या इसके करीब जा सकता है, या इधर तक आ सकता है। एनीवे, wherever it comes, BTC इसके हाफ तक आ सकता है, 53, whatever the top is. So I think this is the last surge in the price. तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक जब ETH ऊपर जा रहा है तो BTC ये वाली रैली जो इसने रैली पिछली दफ़ा की थी, एक रैली लेगा। What I think, बड़ी करेक्टिव टाइप होगी इस तरह की स्लो। सो द क्वेश्चन विच जो मैं आपको इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें रेडी रहना चाहिए कि अब करेक्शन एक्सपेक्टेड है। जिस करेक्शन के बारे में मैं जिक्र करता हूँ वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है और हमें उस करेक्शन के लिए रेडी होना चाहिए। करेक्शन का ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेड्स ना क्लोज करें, बट आपने जिन ट्रेड्स में ओपन है उन ट्रेड्स में प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दें। आई बिलीव, आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज व्हाट हैपन इन हिस्ट्री। प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। और मैं इस बारे में काफ़ी कॉशियस हूँ। देयर इज़ अ डाटा, मैं आपके सामने एक डाटा शेयर करूँगा, अभी तो मेरे पास है नहीं। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। तो बाकी आप मुझे बताइएगा कि इफ़ आई हैव टू पुट some more things into it. बाकी मैंने एक ट्रेड ट्विटर पे शेयर की थी। आई वाज वेटिंग फॉर FTM टू पुट मी, कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। दिस इज वेयर आई एम नाउ, मैं अपना प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी है मैंने, मतलब इस हाई के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी है। फ्रॉम दैट एक्चुअली आई हैव बॉट एट 44 एंड आई हैव बॉट एट 71 एंड आई हैव बॉट एट 68। ये 3 ट्रेड्स में 3 पोजीशन पे मैंने बाय किया। मेरी एवरेज पोजीशन ये थी। सो आई हैव मेड, क्योंकि आपको पता है मैं एवरेजिंग करता हूँ, आई हैव मेड ऑलमोस्ट 21% इन अ डे इन 2 कैंडल्स। गुड डे। एंड द कॉइन जिसके बारे में मैं बड़ा ही जिसके बारे में डिस्कशन कर रहा था वो एव है। आई थिंक कि एव जो है वो अभी तक तो मेरी रैली ले चुका है, बिकॉज मैं आई हैव बॉट वेरी लो, लाइक आई बॉट द लोज ऑफ 350 समथिंग। मैं कहता हूँ कि हाइस्ट ब्रेक करेगा और ये हाइस्ट ब्रेक करेगा, आई बिलीव। सो अभी तक रैलीज हैं इसमें। सो आई थिंक वी मस्ट हैव, वी मे हैव फ्यू मोर रैलीज इन इट, बट हमें तैयार होना चाहिए क्योंकि हमें
फंडिंग को देखना चाहिए कि फंडिंग रेट्स क्या हैं। लुक एट दिस, फंडिंग इज़ राइजिंग बट नॉट दैट मच, ठीक है। और अभी तो मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन फंडिंग रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो हमें पता होना चाहिए कि फंडिंग रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो दैट शोज़ के वी मे गेट अ स्पूकी लाइक दैट। AVX के बारे में भी मैं बुलिश हूँ। आई थिंक AVX ने जो ये मूव बनाया ना, ये लो ब्रेक करके AVX, ये जो BVX ने किया है, ये लिक्विडिटी हंट हुआ है टू दिस ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज द बुलिश सिग्नल। अब हमने क्या ढूंढना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी अनदर लो एंड दिस इज द लो। अगर आप AVS के बारे में बुलिश हैं तो आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यस ब्यूटीफुल, what I'm going to do, I'm going to buy that breaker. This was the breaker. इस breaker पे मैं buying करूँगा and I look for the highs. I think yes, और ये highs को take out करेगा ना। आपको मैं एक बहुत अच्छा trade setup दे रहा हूँ। Inefficiency है यहाँ from that candle to that candle, from that candle technically तो इस पूरे में inefficiency है। अगर तो हमें price वापस मिल जाए तो best है, because ideally where would I like to buy, वो तो, लेकिन क्योंकि मार्केट बुलिश है और यू मे नॉट गेट, आइडियली where would I like to buy, I would like to buy at the, yeah, at this level or at least to this low, but this is the breaker. इस ब्रेकर को आपने कैंडल से ब्रेक किया तो इससे नीचे आने का आई डोंट थिंक सो, इट डजंट मेक सेंस मोर नाउ। आई बिलीव अगर इससे नीचे आएगा तो फिर थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लंबे का मतलब ये है कि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर इट विल टेक टाइम, बट आई थिंक इट इज़ बुलिश, इट इज़ गोइंग टू चैलेंज द हाई। सो AVX में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, तो एटलीस्ट आप इसका $52 का टारगेट अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी इनएफिशिएंसी का सिस्टम भी है और लॉट्स ऑफ, या दीज विक्स और दीज इक्वल हाइज, दे आर गुड। और अगर हम गौर करें तो वी आर इन अ रेंज, लाइक दैट्स द रेंज, वी आर इन अ रेंज। तो 0.5 या आई थिंक एक हिट हो सकती है इसके बाद हमें, बट दिस इज द बाय जोन एंड यू कैन टारगेट एंड यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस। आई मीन अगर मुझसे पूछा जाए तो स्टॉप लॉस कर लगाने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन इफ़ यू पुट अ स्टॉप लॉस, यू पुट अ स्टॉप लॉस at the low of this level at 39,994 and then trade it to the top. It's a good setup inshallah. तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं फेस के साथ आऊँ कि ऐसे ही ठीक है, और एनीथिंग, एनी इम्प्रूवमेंट यू वुड लाइक। माइक के बारे में आप लोग कहते हैं, वो मैं माइक के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, आई विल इंशाल्लाह पुट माइक इन इट। तो बाकी और कोई आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो लेट मी नो, राइट। सो फी मानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।